Hello learners, welcome back to the channel Economic Cities and Statistics, chapter number 1, mean numericals only we are solving. Okay, and in this series, what in this video we are going to do the miscellaneous question. That is basically the revision of all the things that we have done in the previous classes. Okay, so let's find out here the average marks means mean you have to calculate. Now marks are given below 10, 20, 30, 40. Now you come to know that below means 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. You have to make the class interval like that. And remember in class interval, whenever the class interval is given, then you have to calculate the mid value. It's a kind of a sort of a test or a revision of all the things that we have done the previous exercises. Okay. So without any further delay, let's start here. Now average marks here below 10 until 80, a number of students are here. So I'm just going to solve it here. Solution, right? So I'm going to write here class interval 0 to 10, 20, 20, 20 to 30. And meanwhile, you can start doing it by yourself. Pause the video, take the screenshot of the question, and then start solving and tell me in the comment section कि आपका आंसर कितना आया, right? It's very simple, nothing to worry about. 50 to 60, 60 to 70, and 70 to 80. Now frequency is given 25, 40, 60. So 25, 40, 60, then 75, 95, 125, 190, and 240. Now we know the formula first of all. Okay. So the formula for the shortcut, this one direct method पहले हम कर रहे हैं. First, I am calculating with the help of this. तो जब क्लास इंटरवल होते हैं तो आप क्या करते हैं, फॉर्मूला हो जाता है आपका मीन इज इक्वल्स टू सबमिशन एफ एम अपॉन सबमिशन एफ. ना फ्रीक्वेंसी का सबमिशन ऑलरेडी कर ही लो, सभी जगह चाहिए होगा, राइट? सो जस्ट वेट हियर. हाँ, इसमें क्लास फ्रीक्वेंसी ये गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. ओके, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले वाले को ऊपर ऐसे ही लिख लेंगे. ओके, एंड देन यू विल स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग. ये भी तो था ना पॉइंट. ओके. तो इसमें क्या होता है, ये भी चीज एक थी इसमें, आपको ये बोल रहे हैं ये क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको. अब आपको फ्रीक्वेंसी इसकी कैलकुलेट करनी है यहाँ पे. जस्ट वेट फॉर अ वाइल. ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फॉर्मूला तो मैंने सही लिख दिया है, बट हियर ये आपको कैलकुलेट करना है, राइट? ये क्लास फ्रीक्वेंसी जब बिलो में होता है तो हमेशा हम क्या करते थे, क्लास फ्रीक्वेंसी एज इट इज ये 25 आपने यहाँ पे लिखा. ठीक है, अब नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे तो 45, 40 माइनस 25 विल गेट 15. Then 60 minus 40, 20. 75 minus 60, 15. इस तरह फ्रीक्वेंसी पहले कैलकुलेट करनी पड़ती है, राइट? 95 minus 75, 20, 30, 65, and then 50. Now you will do the class summation. इन सबको अब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 240. नाउ सिंपल चीज क्या करना है आपको, दैट इज now you have to calculate this mid value. ओके, एंड मिड वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, L1 प्लस L2 अपॉन 2. ओके, सो मिड वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से. सो हियर यू विल गेट 5, देन 15, then 25. It means 20 plus 30 divided by 2. 30 plus 40 divided by 2. So you will get 35, then 45,
then 55, 65, and 75. Now in formula, we have to find out this FM, summation FM. The first F and M को multiply करेंगे, we will get summation FM. Right? So F into M, 25 into 5, 125, then 225, then 500. Just multiply F into M to get FM. Then 525, then 900, then 1650, 4225, and just wait here, 75 into 50. Okay, 3500. Just wait. So इन सबका टोटल करिए आप 125, 225, 500, 525, 900, 1650, 4225, 3750. So you will get 11,900. Okay. Now I'm going to put the values. 11,900 upon 250. So how much you're going to get? 49.58 average marks. Okay, now same question by shortcut method. Step deviation, you will take it as homework, okay? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x बार इज इक्वल टू, इसमें a हम ऐड कर देते हैं, assuming अपॉन समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ. नाउ आई हैव टू अज्यूम, मीन क्या होगा? सबसे मिड वैल्यू की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप निकाल लेंगे. ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको क्या दिख रही है? दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू 5. ये अज्यूम्ड मीन है मेरा, राइट? 5. एंड एफ, अब डी कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी नो डी एम माइनस ए. तो 5, ये ए आपका अज्यूम मीन 5 है, तो 5 माइनस 5 0, देन 10, देन 20, देन 30. बहुत सिंपल रहता है. अज्यूम्ड हमेशा मीन जो है हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू ही रखिएगा, राइट? देन 40, 50, 60, and then 70. Now I'm going to calculate here f and d, यानी कि ये d है, ये f है, इसको मल्टीप्लाई करिए. So you will get here, please check it by yourself also, 400, then 450, then 800, and 1500, 3900, and 3500. And summation FD is going to be 10,700 इन सबका टोटल, राइट? ये सब हम क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं. नाउ आई एम गोइंग टू पुट इट इन द वैल्यूज. 5 प्लस 10,700, ये वहां से वैल्यू आई. समेशन एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 240. तो जब 10,700 को डिवाइड करेंगे 240 से, यू विल गेट 44.58. So 5 plus 44.58, you will get 49.58 marks. Okay, same answer. Now it is your homework that you are going to solve this with step deviation method. Okay, that would be a plus fd dash upon समेशन एफ इंटू सी. सी तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या है? 10 का आ जाएगा, तो सी आपका 10 है. अज्यूम मीन ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके आपको मतलब कैलकुलेट क्या बता ही दिया था. एंड डी डैश कैसे निकालते हैं? एम माइनस ए आपके पास है, उसको डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर से. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. यू विल गोइंग टू डू दिस सेम क्वेश्चन एंड आंसर शुड बी 49.58. ओके.
सो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इधर एनी ऑफ द वे सबसे बेस्ट रहता है लेकिन डायरेक्ट मेथड। ओके, फर्स्ट जब भी आपका बिलो दिया होता है तो आपको ये क्लास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है क्वेश्चन में, इसको आप अज्यूम ना करिएगा कि ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, आपको फ्रीक्वेंसी इसमें से करनी होती है। पहला नंबर हम एज इट इज लिख देते हैं हमेशा फ्रीक्वेंसी के लिए, एंड देन नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करते चले जाते हैं। सो यू विल गेट द frequency like this. Okay, I hope you understand it. Now question number 2 we are going to solve. Okay, calculate mean from the following. Okay, so calculate mean here. The question is mean is given. Take the screenshot of the question and then we are going to solve. Okay, so here 10 19 this is inclusive series. आपने देखा होगा inclusive series में मैंने आपको बताया भी था that you don't need to do anything. Simple आप इसको बस करते चले जाएंगे, मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर लिए। एंड फॉर योर होमवर्क यू कैन टेक इट शॉर्टकट मेथड भी कर सकते हैं ना। लेट्स स्टार्ट हियर। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। क्लास फ्रीक्वेंसी कितना है ऐसे ही एज इट इज लिख लो, तो मैं वहीं पे सॉल्व कर देती हूँ ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। दोबारा क्यों उसको पूरा मैं लिखूँ। ओके, सो इट वुड बी इजी फॉर मी टू ऑल्सो डू दिस। तो मैं खाली लिख देती हूँ दिस इज योर क्लास इंटरवल एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। ओके, थोड़ा सा देखो मेरी लाइंस मेरी सीधी नहीं बनती हैं। ओके, ना फ्रीक्वेंसी है तो अब हम एम निकाल लेते हैं, राइट। तो एम कैसे निकलेगा, मिड वैल्यू इन दोनों को ऐड करोगे डिवाइड करोगे 2 से, राइट। तो ये आपका आ जाएगा, ये एम का मैं फॉर्मूला बल्कि यहाँ पे समेशन एफ पहले कर दूँ। summation f 32 42 40 56 26 and 2 and 2, so you will get here 200। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आप निकाल रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। मेंशन मैं इसलिए करता कि आप रिवाइज करते चले। ओके, सो मीन इज इक्वल्स टू summation fm अपॉन summation f। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ मिड वैल्यू का भी फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो मिड वैल्यू कितनी आ रही है 14.5 24.5 34.5 44.5 54.5 then 64.5 74.5 and 84.5। ओके, नाउ एफ एम आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ इंटू एम 32 इंटू 14.5, तो ये सब कैलकुलेट करके रखिएगा आप खुद से। 46.4 क्रॉस चेक कर लिएगा 1029 then 1380 2492। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 56 इंटू 50 44.5 20 इंटू 54.5 तो कितना आ रहा है 1090 then 387 then 149 and 169 and summation fm कितना होगा 7160। Now I'm going to put these values in the formula and your formula is this fm 7160। summation समझ जाना, summation में summation of frequency or f is equals to this much, so 7160 divided by 200 you will get 35.8 is your answer। Now your homework is shortcut method से आप इसको करेंगे and answer should be the same। assumed mean पहले कर लेना, सबसे छोटी smallest value, then d calculate कर लेना। ओके, सॉरी देखो शॉर्टकट मेथड में ये हो गया, हाँ सी लिखा तो है यहाँ पे, ठीक है। स्टेप डिविएशन में तो आता है ना। सो अज्यूम्ड मीन मैं बता देती हूँ कितना होगा। एम की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देख ली कितनी है, आई थिंक यही है 14.5, यही लेके चलिएगा।
इट वुड बी इजी फॉर यू। एंड देन डी कैसे निकालेंगे, m माइनस ए, ये सब आता है सबको, नॉट एन इशू, आंसर सेम होना चाहिए, राइट। देन द नेक्स्ट इज द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 16 years, ओके। तो 16 years है। वन स्टूडेंट हुज एज इज 18 years हैज लेफ्ट द क्लास, ओके। तो ये आपका वो करेक्टेड मीन वाला आ जाएगा क्वेश्चन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो समेशन एक्स इज इक्वल्स टू एन इंटू, या एन एक्स आप सीधे सीधे लिख दिए ना, मतलब यहाँ पे होता है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एन को एक्स बार से, राइट। उसका हम फॉर्मूला सही करके करेक्टेड मीन निकालेंगे। तो 20 इंटू 16, 20 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज एज कितनी 16 है, तो ये आपका आ गया 320, ओके। समेशन एक्स। ना करेक्ट आपकी क्या आएगी, करेक्ट मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल्स टू समेशन एक्स, ये रॉन्ग वाले का, इनकरेक्ट का, ठीक है। समेशन एक्स जो आपका रॉन्ग था वो माइनस इनकरेक्ट वैल्यू या रॉन्ग वैल्यू जो भी आपकी है, प्लस करेक्ट वैल्यू, यही तो फॉर्मूला था इसका, ऑन एन गोइंग टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो ये आपका था जो गलत आपका आया था आंसर, वो सबमिशन एक्स रॉन्ग वाला था, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू क्या था, whose age is 18 years have left the class, यानी कि ये रॉन्ग आपकी वैल्यू थी, राइट। इनकरेक्ट वैल्यू इज 18 और करेक्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 16 होना चाहिए, क्या एवरेज बोला गया था, divided by n, number of students is 20, okay, very simple। 320 minus 18 plus 16, you will get 318 upon 20, so you will get how much, 15.9 years। so average age of rest of the students, तो ये मैं लिख दूंगी आंसर, एवरेज एज ऑफ रेस्ट ऑफ द, मीन का मतलब भी एवरेज होता है, ओके, आर 15.9 years, and this is your answer, okay। now take question number 4 जो missing value का है as your homework, okay। question number 4 and few more questions are left, hardly 3 or 4 more questions we will do, and then the main is going to be complete, okay। then median we will start, okay। so please stay tuned and just check all the questions that we have done so far here, the revision series, that is the miscellaneous questions। number 1, find average marks when below is given, तो class frequency given होगी, आप frequency calculate करेंगे, this is the solution। अब इसमें खाली मैंने क्या किया, शॉर्टकट डायरेक्ट के साथ शॉर्टकट कर दिया, स्टेप डिविएशन फॉर योर होमवर्क। नेक्स्ट इज व्हाट, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग, अगेन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या है आपका इंक्लूसिव सीरीज है, इसमें आप कोई चेंज नहीं करते हैं, मैंने वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया डायरेक्ट मेथड से, एंड यू हैव टू सॉल्व इट शॉर्टकट एंड स्टेप डिविएशन मेथड, आंसर वुड बी सेम, ओके। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, अब आप स्टेप डिविएशन भी करके देख लीजिएगा, राइट। Then average corrected mean हमने किया, the average age of 20 students in a class 16 years, if we are going to put the formula, okay, corrected mean कैसे हम calculate करेंगे, first of all जो summation x था, यानी कि wrong summation जो आपका था, ठीक है, उससे माइनस करेंगे इनकरेक्ट वैल्यू जो पुट करी थी और प्लस करेंगे करेक्ट वैल्यू को, एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ थिंग्स, ओके। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे आपके एंड देन यू गेट दिस एज ऑफ रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर 15.9 एज द, you can say average age, okay। now locate the missing frequency, missing frequency को आप f1 मान लेंगे और अर्थमेटिक मीन आपका 44.8 है, then how you are going to solve it, just let me know, and what else I can say here, the missing frequency का मैं आंसर आपको बता सकती हूँ, so f1 is equals to 7, this is your answer, यहाँ पे 7 आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको इतना बता दिया है।
In the next video, we are going to solve this question, okay, missing frequency, and few more questions from the main chapter. Then the main chapter will be completed. Okay, and we are going to start the next new chapter, numericals. Okay, so stay tuned and keep watching Economic Cities. Thank you.